In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं नासिर यूट्यूब चैनल। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद कहा कि भारत यरूशलेम और गाजा में हिंसा को लेकर चिंतित है और इस वक्त भारत फिलिस्तीनियों के जायज मांग का समर्थन करता है। जी हां दोस्तों, टीएस तिरुमूर्ति ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि भारत फिलिस्तीनियों के जायज मांग को लेकर समर्थन करता है। कि भारत के कुछ अनुभक्त लगातार कह रहे थे कि मैं इजरायलियों के साथ में हूं, भारत इजरायलियों के साथ में खड़ा है। उन अनुभक्तों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, उसके ऊपर एक तमाचा ऐसा लगा है साके मारे उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जो भारत की राष्ट्र आज भारत के जो राजदूत है वह और भारत के प्रधानमंत्री, पूरा देश आज फिलिस्तीनियों के साथ में खड़ा है। लेकिन कुछ अनुभक्त जो है वह कहते हैं कि आई स्टैंड विथ इजराइल, मैं इजरायलियों के साथ में हूं। अरे अनभक्तों, देखो तुम्हारे पापा किसके साथ में खड़े हैं। और फौजियों ने किस तरह से निहत्थे मुसलमानों के ऊपर हमला किया, इस हमला को लेकर भारत के दूत तिरुमूर्ति चिंतित है, वह दुख प्रकट करते हैं। और उन सारी घटनाओं का जिस तरह से लगातार दोनों तरफ से बमबारी हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं इस हिंसा का मजम्मत करता हूं। और उन्होंने आगे क्या कहा है मैं आपको सुनाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मैं और वीडियो दिखाऊंगा अटल बिहारी वाजपेयी का, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक ऐतिहासिक बयान दिया था। उन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में क्या कहा था वो भी मैं आखिर में वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें भारत के दूत ने, टीएस तिरुमूर्ति ने फिलिस्तीनियों के बारे में, इजरायलियों के बारे में और लगातार जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। Thank you, Mr. President. I thank Special Coordinator Tor Wennesland for his briefing. I also welcome all dignitaries to this open debate. The Security Council held two closed meetings on the developments earlier this week. In both these meetings, we had expressed our deep concern over the violence in Jerusalem, especially on Haram al-Sharif, Temple Mount, during the holy month of Ramadan, and about the possible eviction process in Sheikh Jarrah and Silwan neighborhood in East Jerusalem, an area which is part of an arrangement facilitated by the UN. We had also expressed our apprehension at the spread of violence to other parts of West Bank and Gaza. Today's open debate has been necessitated by the continuing violence which began in East Jerusalem a week back and is now threatening to spiral out of control. The events of the last several days have resulted in a sharp deterioration of the security situation. The indiscriminate rocket firings from Gaza targeting the civilian population in Israel, which we condemn, and the retaliatory strikes into Gaza have caused immense suffering and resulted in deaths, including women and children. India has also lost one of her nationals living in Israel in this rocket fire, a caregiver in Ashkelon. We deeply mourn her demise, along with all other civilians who have lost their lives in the current cycle of violence. We reiterate our strong condemnation of all acts of violence, provocation, incitement, and destruction. Immediate de-escalation is the need of the hour, so as to arrest any further slide towards the brink. We urge both sides to show extreme restraint, desist from actions that exacerbate tensions, and refrain from attempts to unilaterally change the existing status quo, including in East Jerusalem and its neighborhood. Jerusalem has a special place in the hearts of millions of Indians who visit the city every year. It also houses the Al-Zawiya Al-Hindiya,
The Indian Hospice, which is a historic place associated with a great Indian Sufi saint Baba Farid and located inside the old city. India has restored this Indian Hospice. The historic status quo at the holy places of Jerusalem, including the Haram al-Sharif Temple Mount, must be respected. We support the diplomatic efforts of the Quartet and other members of the international community, the countries in the region in particular, to calm the situation and put an end to the ongoing violence and seek to achieve durable peace. These incidents have once again underscored the need for immediate resumption of dialogue between Israel and Palestinian authorities. The absence of direct and meaningful negotiations between the parties is widening the trust deficit between the parties. This will only increase the chances for similar escalation in the future. We believe that every effort should be made to create conducive conditions for resumption of talks between Israel and Palestine. In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. वीडियो में भारत के दूत टीएस तिरुमूर्ति ने क्या कहा है मैं आपको हिंदी में आपको सुना देना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद कहा, भारत यरूशलेम और गाजी में हिंसा को लेकर चिंतित है। भारत यरूशलेम और गाजी में जिस तरह से बिल्डिंगों के ऊपर बमबारी किया जा रहा है, जिस तरह से वहां के महिलाओं पे, बच्चों पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर भारत का दूत चिंतित है। और ये दूत ने कहा कि भारत हर तरह की हिंसा की निंदा करता है, तत्काल तनाव खत्म करने की अपील करता है। देखिए किस तरह से भारत के दूत ने लगातार कुछ लोगों से उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें रखी है। और उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात कहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहा है भारत के दूत ने, कि भारत फिलिस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है। भारत फिलिस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है और दो राष्ट्रों की नीति के जरिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है, कमिटमेंट है। यह भारत के दूत टीएस तिरुमूर्ति का यह बयान था। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार इजराइल गाजा के ऊपर फिलिस्तीनी मुसलमानी भाइयों के ऊपर जिस तरह से लगातार हमले कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंतक है। और आपने बमबारी का ये सारा वीडियो आपने देखा, ये एक ऐसा लगता है कि तीसरा ये वर्ल्ड वार का रूप न धारण कर ले, इसलिए आज पूरा मुल्क इस घटना को लेकर चिंतित है। ऐसा लगता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार का रूप धारण न कर ले, इसीलिए आज सभी देशों ने मिलकर यह तय किया है कि ऐसे हिंसा को लेकर हम लोग चिंतित हैं और ऐसे हिंसा खत्म होना चाहिए ताकि हम सब सुखी संपन्न अपना जीवन व्यतीत करें। और जिसमें भारत की दूत ने क्या कहा आपको मैंने बताया। और उन भक्तों को ये कंगना रनौत जैसी ये दो कौड़ी की महिला जिसको अपनी औकात नहीं है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, उसके पूर्वजों ने क्या कहा था फिलिस्तीनियों के समर्थन में, उसको ये नॉलेज नहीं है। आज वह बोलती है कि भारत इजरायलियों के साथ में है, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कंगना रनौत को और उन सारे अनुभक्तों को जो बोल रहे थे कि भारत इजरायलियों के साथ में खड़े हैं। आप ये भी बयान देखिए, ये बयान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। उन्होंने यरूशलेम के बारे में, फिलिस्तीनियों के बारे में क्या कहा था। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। आपने बयान में सुना कि अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं कि अरबों के जिस जमीन पे इजरायलियों का कब्जा है उसे खाली करना पड़ेगा।
अरबों के जिस जमीन पे, मतलब के फिलिस्तीनियों के ज़मीन पे जिस तरह से इजरायलियों ने लगातार कब्जा कर रहा है, उस ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक और महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि फिलिस्तीनियों के उचित अधिकारों का प्रतिस्थापना होनी चाहिए। जिस तरह से लगातार फिलिस्तीनियों के ऊपर इजरायलियों ने जुल्म कर रहा है, उस वक्त जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस बात को लेकर चिंतित थे और उनको भी पता था कि फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल जुल्म कर रहा है। तो उस जुल्म के खिलाफ में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह ऐतिहासिक भाषण दिया था। आज अनभक्त को अपने पूर्वज का भी ज्ञान नहीं है, वह चले हैं आज इजरायलियों का साथ देने। जो इजराइल एक आतंकी हमला कर रहा है, मासूमों पे हमला कर रहा है, फिलिस्तीनी मुसलमानों के घर में घुस कर जाकर हमला कर रहा है, तो आज ये कुछ अनभक्त उन्हीं आतंकवादियों के साथ में खड़ा है। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आज देखो तुम्हारे पापा, आज भारत के दूत और भारत के प्रधानमंत्री उन फिलिस्तीनियों के साथ में खड़ा है। लेकिन तुम अनभक्त जो हो कि जो लोग मुसलमानों के समर्थन में आ जाते हैं, तुम उसका विरोध करते हो। तो तुम्हारा क्या ज्ञान है वो तो सबको पता है। तुम तो गोबर भक्त हो, तुम्हारे माइंड में गोबर भरा है। तुम तो गौमूत्र पीते हो, गाय के गोबर खाते हो, गाय की गोबर से स्नान करते हो। बस तुम इतना ही जानते हो, उतना ही में रहो। चलो, आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।